Hello everyone. This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all the issues and events which have national and international importance for UPSC civil services and various state pieces examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what are the stress factors for Indian Railway. In this article we will discuss about what are various challenges and issues facing Indian Railways and what is a Kavach program. विल इट एंड रेल एक्सीडेंट इन इंडिया, क्या कवच प्रोग्राम रेल एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेगा. द सेकेंड इशू इज हाउ विल अ क्लासिकल स्टेटस हेल्प लैंग्वेजेस. इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ classical status is given to various languages and how many total language which have given classical status. The third issue is related to Kala Jar. In this article, we will discuss about what is Kala Jar and what are various symptoms and what is treatment of Kala Jar. The fourth issue is carbon dioxide emissions from forest fire increased by 60%. In this article, we will discuss about what is forest fire and how forest fire can lead to carbon dioxide emissions and what are various negative impact of forest fire on environment. So let's discuss all the issues. In this article, we will discuss about how Indian Railway faces heavy losses despite high hopes and what is Kavach automatic train production system. Will it end a rail accident in India? So let's discuss the issue. On October 17, 8 coaches of the Agartala Lokmanya Tilak Express derailed in Assam with no casualties. अक्टूबर 17 को अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस वे के 8 कोचेज आसाम में डीरेल हो गया था जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ था. ये 2 डेज पहले का इंसिडेंट है. ऑन अक्टूबर 11 अ पैसेंजर ट्रेन रियर एंडेड अ स्टेशनरी गुड ट्रेन नियर चेन्नई ऑल्सो विद नो कैजुअलिटी. अब से 1 वीक पहले अक्टूबर 11 को एक पैसेंजर ट्रेन ने स्टेशनरी गुड ट्रेन को रियर एंडेड किया था चेन्नई में. वहां पर भी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुआ. इंडियन ट्रेन्स हैव बीन इन्वॉल्व इन मल्टीपल एक्सीडेंट रिसेंटली अगर देखा जाए इंडियन ट्रेन्स मल्टीपल एक्सीडेंट शो कर रही हैं. द बालासोर इंसिडेंट ऑन जून 2 2023 हैड द ग्रेटेस्ट डेथ टोल more than 275. Yet pressure on the railway to improve safety competes with pressure straining its subsistence. इस साल का जो सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ था वो जून 2 2023 सॉरी ये लास्ट ईयर का है. जून 2 2023 को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 275 यहाँ पर डेथ टोल रीच हो गया था. इंडियन रेलवे करंट में अपने सेफ्टी नॉर्म्स को इम्प्रूव करना चाह रही है बट इस सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस इंडियन रेलवे फेस कर रहा है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. हाउ कॉमन आर एक्सीडेंट. The number of railway accidents dropped from 1,390 per year in 1960 to 80 per year in last decade. 1960s में इंडियन रेलवे के अंदर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे. अबाउट 1319 एक्सीडेंट पर ईयर हुआ करते थे बट करंट में स्पेशली लास्ट डिकेड के अंदर 80 पर ईयर तक ये रिड्यूस हुआ है. इट मीन्स 1 ईयर के अंदर अबाउट 80 एक्सीडेंट अब इंडियन रेलवे में होते हैं. देयर वर स्टिल 34 कंसिक्वेंटल एक्सीडेंट इन 2021-22, 48 इन 2022 एंड 40 इन 2023. लास्ट 3 ईयर्स का अगर डाटा देखा जाए इंडियन रेलवे के एक्सीडेंट का 2021 में 34 एक्सीडेंट हुए थे, 2022 में 48 एंड 2023 यानी लास्ट ईयर 40 एक्सीडेंट इंडियन रेलवे के अंदर हुए थे. According to public records, 55.8% of all accidents involving trains have been due to the failure of railway staff and another 28.4% due to failure on the part of non-staff people. पब्लिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेन के ऑल एक्सीडेंट का 55.8% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रेलवे स्टाफ के फेल्योर की वजह से होते हैं जबकि रिमेनिंग 28.4% एक्सीडेंट जो होते हैं वो नॉन स्टाफ पीपल के फेल्योर की वजह से होते हैं. इक्विपमेंट फेल्योर की अगर बात की जाए तो 6.2% एक्सीडेंट इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से होते हैं. What is Kavach automatic train production system? The Kavach automatic train production system is designed to prevent collision using devices that allow pilots to track the relative location of their vehicles and which can actuate alarm and automated braking protocol.
कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कुछ स्पेशल डिवाइसेस का यूज करके ट्रेन के कोलिजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अंडर पायलट को यहाँ पर रिलेटिव लोकोमोशन अपने व्हीकल का उसको ट्रैक करने के लिए एक सिग्नल मिल जाता है और अलार्मिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटेड ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स का प्रोविजन किया गया है। बाय फरवरी 2024 द रेलवे हैड इंस्टॉल्ड कवच ऑन 1465 रूट किलोमीटर और 2% ऑफ इट्स टोटल रूट लेंथ। फरवरी 2024 तक रेलवे ने 1465 किलोमीटर रूट पर कवच ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। इट मीन्स अभी ये बहुत कम है। ओवरऑल इंडियन रेलवे ट्रैक के 2% ट्रैक पर ही अभी ये इंस्टॉल किया गया है। इट कॉस्ट ₹50 लाख पर किलोमीटर एंड 70 लाख पर लोकोमोटिव। लोकोमोटिव ऑटो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात की जाए, इसका जो एक्सपेंस इसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। पर किलोमीटर 50 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है और पर लोकोमोटिव के हिसाब से देखा जाए तो 70 लाख रुपीज़ का यहाँ पर चार्ज है। An analysis found the all-inclusive cost of implementation over a decade to be less than 2% of the railway annual capex। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर पूरे रेलवे ट्रैक पर कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो ओवरऑल रेलवे एनुअल कैपेक्स जो होता है, जो बजट होता है, उसका 2% तक इसमें एक्सपेंस किया जा सकता है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशो? द ऑपरेटिंग रेशो OR, द अमाउंट द रेलवे स्पेंड टू अर्न 100। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है कि 100 रुपीज अर्न करने के लिए इंडियन रेलवे जितना अमाउंट स्पेंड करती है, इसको हम ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं। 2024-25 में ये जो ऑपरेटिंग रेशो था वो 98.2 रुपीज़ था। इट मीन्स 100 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए रेलवे ने 98.2 रुपीज़ एक्सपेंड किया था। 2023 में ये जो रेशो था, ऑपरेटिंग रेशो 98.7 रुपीज़ था और 2016 की अगर बात की जाए तो 97.8 रुपीज़ इसका ऑपरेटिंग रेशो था। A higher operating ratio leaves less for capex and the railway more dependent on budgetary support and extra budgetary resources। Higher operating ratio जो होता है वो कैपेक्स के लिए यहाँ पर इंडियन रेलवे के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से लॉस हो सकता है, बिकॉज जितना एक्सपेंड ज़्यादा होगा वो इंडियन रेलवे के लिए कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट करेगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंडियन रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजटरी एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए। हाउ मच फ्रेट सर्विसेज रेवेन्यू? फ्रेट सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? द रेलवेज टू मेन इंटरनल रेवेन्यू सोर्सेज आर पैसेंजर सर्विसेज एंड फ्रेट सर्विसेज। इंडियन रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेनली टू इंटरनल एक्टिविटीज हैं, स्पेशली पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है और फ्रेट सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो रेवेन्यू मिलता है, यही ओवरऑल रेवेन्यू इंडियन रेलवे का होता है। फ्रेट रेवेन्यू अकाउंट्स फॉर 65%, while revenues from both sources increasing freight rates increased more than thrice as fast as passenger rates in 2009 to 19, नीति आयोग has estimated। फ्रेट रेवेन्यू एंड पैसेंजर रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो इसमें ये कंटिन्यू इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट इसमें भी फ्रेट रेवेन्यू पैसेंजर रेवेन्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और ये जो इंक्रीमेंट देखा गया है लास्ट 2009 से 19 तक, इट मीन्स लास्ट 10 ईयर में ये इंक्रीमेंट देखा गया है। ओवरऑल रेवेन्यू का 65% के लिए फ्रेट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कोल अकाउंटेड फॉर हाफ ऑफ द फ्रेट रेवेन्यू ऑफ and 45% of volume in the 2024-25 budget estimate। ओवरऑल फ्रेट रेवेन्यू की बात की जाए तो उसमें हाफ के लिए कोल रिस्पॉन्सिबल है। अबाउट पैसेंजर सर्विस रेवेन्यू, in 2019-20 the revenue from passenger services was a little over rupees 50,000 crore and lost 63,364 crore। 2019-20 में अगर पैसेंजर सर्विस के थ्रू रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाए,
तो जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था पैसेंजर सर्विसेज के थ्रू वो 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जबकि लॉस की अगर बात की जाए तो 63,364 करोड़ का यहाँ पर लॉस इनकर किया था रेलवे, इंडियन रेलवे के द्वारा। इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल वन 1,10,000 करोड़ का यहाँ पर रेलवे ने एक्सपेंड किया, जबकि इसने ओनली 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको रेवेन्यू जनरेट हुआ। In 2021-22, a pandemic year in which many trains had to be cancelled, passenger services incurred a loss of rupees 68,269 crore. 2021-22 जब पैंडमिक ईयर पूरी दुनिया फेस कर रही थी, मैंने ट्रेन्स उस टाइम पर कैंसिल की गई थी और इस वजह से पैसेंजर सर्विस के थ्रू इंडियन रेलवे को 68,269 करोड़ रुपीज का यहाँ पर लॉस हुआ था। In a July 2024 analysis, PRL Legislative Research estimated the revenue from passenger services was rupees 80,000 crore in 24-25। जुलाई 2024 के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2024-25 में जो पैसेंजर सर्विस के थ्रू इंडियन रेलवे को लॉस हो सकता है वो अबाउट 80,000 करोड़ तक का लॉस हो सकता है। द रेलवे फ्रेट प्रॉफिट इज ऑफसेट सिग्निफिकेंटली बाय पैसेंजर लॉसेस। अब ये जो लॉस होता है बिकॉज फ्रेट सर्विसेज के थ्रू रेलवे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अबाउट 65% रेवेन्यू जनरेट के लिए फ्रेट सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल है और पैसेंजर सर्विस के थ्रू जो लॉस होता है उसको ऑफसेट करने के लिए फ्रेट सर्विसेज इंडियन रेलवे की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट मीन्स पैसेंजर सर्विस के थ्रू जो लॉस होता है वो फ्रेट सर्विस के थ्रू कवर कर दी जाती है। How is safety affected? For a long time now, the railway has been caught between two aspirations, providing an affordable traveling option to the Indian people versus being a profitable business। एक लॉन्ग टाइम से और अभी भी इंडियन रेलवे टू आस्पिरेशंस के बीच में फंसी हुई है। पहला आस्पिरेशन इंडिया रेलवे चाहता है कि इंडियन पीपल को अफोर्डेबल ट्रेवलिंग ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। दूसरा इसका जो आस्पिरेशन है वो है कि इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए। द रेलवे लॉसेस आर कंपाउंडेड बाय ग्रोइंग वेजेस एंड पेंशन बिल्स एंड फ्यूल कॉस्ट। रेलवे का अगर लॉस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो वेजेज के थ्रू, पेंशन के थ्रू एंड फ्यूल कॉस्ट जो रेलवे का होता है। सबसे ज़्यादा लॉस इंडियन रेलवे को इन्हीं तीन चीज़ों में होता है। लोकोमोटिव पायलट हैव ऑल्सो रिपोर्टेड स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग 12 आवर शिफ्ट स्पेशली इन जोन विद लार्ज फेट वॉल्यूम्स एंड शिफ्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रक्चर्स। सेफ्टी से रिलेटेड एक और कंसर्न यहाँ पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटिव पायलट जो होते हैं इंडियन रेलवे के अंदर वो स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशंस फेस कर रहे हैं। 12 आवर शिफ्ट तक इन्हें वर्क कराया जाता है और ऐसे जोन में वर्क कराया जाता है जो कि लार्ज फ्रेट वॉल्यूम से फुल है एंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रोक्योर है वो भी स्टैंडर्ड नहीं है और इसके अंदर भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। In this article, we will discuss about what are classical languages of India and what are the criteria for classical language, list of classical language. So let's discuss the issue. The Union Cabinet approved classical status for 5 more languages earlier this month: Marathi, Bengali, Assamese, Pali, and Prakrit. इस मंथ के स्टार्टिंग में यूनियन कैबिनेट ने 5 more लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया है और ये 5 लैंग्वेज हैं मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत। न्यू स्टेटस विल प्रोटेक्ट एंड एनहांस हिस्टोरिक रिसर्च, लिटरेरी ट्रांसलेशंस एंड द मॉडर्न फीड ऑफ दीज लैंग्वेजेज। अभी जो ये इन 5 लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, क्लासिकल स्टेटस दिए जाने की वजह से इन लैंग्वेज का जो हिस्टोरिक रिसर्च है, लिटरेरी ट्रांसलेशंस है, मॉडर्न फीड ऑफ दिस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनहांस किया जा सकता है। व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज क्लासिकल? क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन कंसिडर्ड एज दोज विच एन एंशिएंट एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन। क्लासिकल लैंग्वेज किसी भी उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है जब वो कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करती है। वो लैंग्वेज एंशिएंट होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए। दे आर ऑफन नॉट इन यूज एज स्पोकन लैंग्वेज सच एज लैटिन एंड संस्कृत और आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर मॉडर्न वर्जन्स।
लैंग्वेज को ऐसा हो सकता है कि जिस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है वो स्पोकन लैंग्वेज के रूप में उसका यूज करंट में नहीं किया जा रहा हो। जिस तरह से लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेज है, करंट में हम इसको स्पीकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, बट इनका जो इफेक्ट है इन लैंग्वेजेस का वो ट्रेडिशनल लिटरेरी सोर्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफन रिकग्नाइज्ड फॉर देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एंसेंट लिटरेचर उस लैंग्वेज में रिटन होने चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ एंसेंट रिटन लिटरेचर, इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज, दिस लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज, इन लैंग्वेज का कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए। नो लॉन्गर स्पोकन, मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर नो स्पोकन एज नेटिव लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेज जो होती हैं जिन्हें क्लासिकल स्टेटस दिया गया है करंट में वो स्पोकन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लैंग्वेज, इन लैंग्वेज का मॉडर्न लैंग्वेज पर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के। लैंग्वेज विद गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, करंट में इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू 11। करंट में इंडिया की 11 लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। अर्लियर देयर वर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, देवर तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर थे, तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ 5 मोर इंडियन लैंग्वेजेस, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली एंड आसामी इनटू दिस लिस्ट। करंट में कैबिनेट ने 5 मोर लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर अप्रूव किया है, जिसमें मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली एंड आसामीज आती है। सेवरल बेनिफिट्स टू अ क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज अगर किसी लैंग्वेज को ये स्टेटस दे दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। व्हेन अ लैंग्वेज इज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इट रिसीव सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रमोट इट्स स्टडी। किसी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है तो इस लैंग्वेज के थ्रू सेवरल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं। सच एज इंटरनेशनल अवार्ड are given to annual international awards are given to scholars of the language। इस लैंग्वेज के स्कॉलर को टू एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज एस्टेब्लिश फॉर स्टडीज इन द लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे दिया जाता है तो उसके लिए उसकी स्टडी के लिए एक सेंटर ओपन किया जाता है स्टडी के लिए। प्रोफेशनल चेयर, द यूजीसी इज एनकरेज टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इन द लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए उसके रिसर्च के लिए यूजीसी को एनकरेज किया जाता है कि वो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोविजन करें उसको सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। creates employment opportunities, the recognition of the language creates job opportunities in academic and research area। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है तो इसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो सकता है इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च एरियाज। preservation of ancient text, the preservation, documentation and digitization of ancient text of the language create job in translation as archiving, publishing and digital media। एंसेंट टेक्स्ट का जो जो टेक्स्ट इस लैंग्वेज से रिलेटेड है जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है उस लैंग्वेज से रिलेटेड टेक्स्ट का प्रिजर्वेशन यहाँ पर इजी हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को बूस्ट किया जाता है। इस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एंसेंट टेक्स्ट हैं उनको डिजिटाइजेशन किया जा सकता है, ट्रांसलेशन किया जा सकता है, आर्काइविंग, पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया के थ्रू इसका पब्लिशिंग कराया जाता है। What is Kalajar disease? How it is transmitted? Kalajar is a protozoan parasitic disease transmitted through sandfly bites. So let's discuss the issue. India could get eliminating certificate of Kalajar because India have managed to keep the number of cases under 1 into 10,000 per the as per the WHO parameters for elimination certificate for 2 consecutive years now। इंडिया ने लास्ट 2 consecutive years में कालाजार रिलेटेड डिसीज को कम किया है
और WHO के पैरामीटर के अकॉर्डिंग इंडिया को एलिमिनेटिंग सर्टिफिकेट अब मिल सकता है। इसके लिए पैरामीटर ये है कि अगर पर 10,000 में अगर ओनली वन या लेस देन 1% को काला जार होता है, तो इसका मतलब है कि उस कंट्री के अंदर काला जार एलिमिनेट होने की कंडीशन में है और उसको एलिमिनेटिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इंडिया भी अब सीख कर रहा है कि काला जार एलिमिनेटिंग सर्टिफिकेट इंडिया को दिया जाए, बिकॉज इंडिया ने इस केसेस को 10,000 में वन तक इसको पहुंचा है। इट मीन्स अबाउट 10,000 पॉपुलेशन में से 1% को कालाजार यहाँ पर हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इसने इसको रिड्यूस किया है। कालाजार इज सेकंड डेडलिस्ट पैरासाइटिक डिसीज आफ्टर मलेरिया इन इंडिया। इंडिया में मलेरिया के बाद कालाजार सेकंड डेडलिस्ट पैरासाइटिक डिसीज है। इंडिया रजिस्टर्ड 595 केसेज एंड 4 डेथ इन 2023 एंड दिस ईयर हैज रिकॉर्डेड 339 केसेज एंड 1 डेथ सो फार। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर 595 केसेस कालाजार से रिलेटेड आइडेंटिफाइड किए थे, जिनमें से 4 डेथ आइडेंटिफाई की गई थी। करंट ईयर की अगर बात की जाए तो अभी तक 339 केसेस कालाजार के यहाँ पर नोटिफाइड किए गए, जिनमें से 1 डेथ शो किया गया। India will become eligible to seek the elimination certificate from WHO, making it the second country in the world after Bangladesh. इंडिया WHO से अब एलिमिनेट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा और इस सेकंड नंबर का कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले ये सर्टिफिकेट बांग्लादेश को मिला था, बिकॉज बांग्लादेश ने अपने कंट्री के अंदर कालाजार डिसीज को काफ़ी हद तक एलिमिनेट किया है। What is Kalajar? Kalajar is a deadly parasitic disease caused by the protozoa parasite Leishmania and mainly affect the people living in Africa, Asia and Latin America. कालाजार एक डेडली पैरासाइटिक डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसका नेम है लेशमेनिया, इसकी वजह से ये डिसीज होता, स्पेशली प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं। द डिसीज कैन कॉज डेथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इस डिसीज को ट्रीट नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कालाजार ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमेनियासिस और ब्लैक फीवर और डुमडुम फीवर। कालाजार को डुमडुम फीवर या फिर ब्लैक फीवर या विसरल लेशमेनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेशमेनियासिस। Visceral leishmaniasis which affect multiple organ and is the most serious form of disease. लेशमेनियासिस के 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें से विसरल लेशमेनियासिस पहला टाइप है। ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हमारे बॉडी का मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। नंबर 2, कैटनियस लेशमेनियासिस, इट कॉजेज स्किन सोर्स एंड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ये जो लेशमेनियासिस है ये स्किन को अफेक्ट करता है। नंबर 3, मुकोक्टेनियस लेशमेनियासिस विच कॉज स्किन एंड मस्कुलर लेजेंस, ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है और मस्कुलर लेजेंस को भी अफेक्ट करता है। ग्लोबल एंड नेशनल स्टेटस कालाजार से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO, कालाजार इज द सेकंड डेडलिस्ट पैरासाइट डिसीज इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। पैरासाइट डिसीज से सबसे ज़्यादा 2 बीमारियाँ होती हैं, कालाजार एंड मलेरिया। सबसे डेड लिस्ट की अगर बात की जाए तो मलेरिया है और सेकंड नंबर पर कालाजार है। एज ऑफ नवंबर 2022, अबाउट 89% ऑफ द ग्लोबल केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 8 कंट्रीज: ब्राज़ील, इरिट्रिया, इथियोपिया, इंडिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान एंड सूडान। नवंबर 2022 तक ग्लोबली जितने भी कालाजार केसेस रिपोर्ट किए गए थे, इनमें से 89% रिपोर्ट किए गए थे ओनली 9 कंट्रीज से, जिसमें ब्राज़ील है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, इरिट्रिया, इथियोपिया, इंडिया, केन्या, सोमालिया, साउथ सूडान एंड सूडान। स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 11.5% ऑफ टोटल केसेस ऑफ कालाजार रिपोर्टेड ग्लोबली। ग्लोबली कालाजार के जितने भी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, इनमें से इंडिया की अगर बात की जाए तो 11.5% केसेस इंडिया से कवर्ड किए जाते हैं। ओवर 90% ऑफ कालाजार केसेस इन इंडिया रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार, झारखंड, वाइल यूपी एंड वेस्ट बंगाल आर अचीव्ड दियर एलिमिनेशन टारगेट एट ब्लॉक लेवल। इंडिया में जितने भी कालाजार केसेस आते हैं, इन केसेस
का 90% केसेस बिहार एंड झारखंड से रिपोर्ट किए जाते हैं। यूपी एंड वेस्ट बंगाल से भी केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, बट यूपी एंड बंगाल ने ब्लॉक लेवल पर इस डिसीज को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर लिया है। Transmission and prevention. It is transmitted to humans by a bite of an infected female phabotomine phabotomine sandfly. काला जार जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन के अंदर, वो फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल फैल्बोटमाइन सैंड फ्लाइट के बाइट करने से होता है। प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो वेरियस मेजर्स के थ्रू हम प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। रिड्यूस द ब्रीडिंग साइड ऑफ सैंड फ्लाइज एंड इज प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम सैंड फ्लाई बाइट्स। इसको अगर हमें इस प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो उसके लिए हमें सैंड फ्लाइज का जो ब्रीडिंग साइट्स है उसको रिड्यूस करना होगा और पीपल को सैंड फ्लाई बाइट्स से भी प्रोटेक्ट करना होगा। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना होगा, बैड नेट्स का यूज करना होगा, रिप्लेंट्स का यूज करना होगा, इम्प्रूव ऑफ हाउसिंग कंडीशंस को हमें इम्प्रूव करना होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का हमें ध्यान रखना होगा। द WHO ऑल्सो रिकमेंड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एरियाज वेयर द डिसीज इज एंडेमिक। जिन एरियाज में कालाजार एंडेमिक डिसीज एंडेमिक है, उन एरियाज में हमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना होगा। ये WHO का रिकमेंडेशन है। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। सिम्टम्स की अगर बात की जाए, किसी पर्सन को अगर कालाजार डिसीज है तो वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है एंड लीवर एंड स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो सकता है। ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार इन्वॉल्व सच एड सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट एंड मैग्लूमाइन एंटीमोनेट, ये इसके लिए ड्रग्स हैं। सम इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल कालाजार। कालाजार को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू अचीव इट्स गोल ऑफ एलिमिनेटिंग कालाजार फ्रॉम इंडिया बाय 2023, such as building Pakka House through PM Awas Yojana, rural electrification, testing, treatment, periodic high-level review and award distribution. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कालाजार को कंट्रोल करने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए सेवरल स्टेप्स टेकिंग किए गए हैं। पहले जो टारगेट रखा गया था वो 2023 तक इसको फुल्ली एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया था और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पक्का हाउस पीएम आवास योजना के स्कीम के अंडर पक्का हाउस बनाने का यहाँ पर प्रोविजन किया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को यहाँ पर बूस्ट किया गया। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, पीरियोडिक हाई लेवल रिव्यू एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द स्टेट्स इन एक्टिव केस डिटेंशन, सर्विलेंस, ट्रीटमेंट एंड सप्लाई ऑफ डियाग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन एंड स्प्रे। कालाजार डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी वेरियस सेक्टर्स में यहाँ पर प्रमोट किया है। अर्ली डिटेंशन, कालाजार से रिलेटेड एक्टिव डिटेंशन, सर्विलेंस, ट्रीटमेंट एंड सप्लाई ऑफ डियाग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिसिन एंड स्प्रे से रिलेटेड स्टेट्स को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया है। नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 सेट द गोल ऑफ कालाजार एलिमिनेशन इन इंडिया बाय द ईयर 2010 विच वॉज रिवाइज्ड फॉर 2015। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंडर कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए एक गोल रखा गया और ये जो पहले गोल रखा गया था ये 2010 रखा गया था, उसके बाद इसको 2015 कर दिया गया। इंडिया साइंड अ ट्रिपटाइड MOU विद बांग्लादेश एंड नेपाल टू अचीव कालाजार एलिमिनेशन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। इंडिया ने कालाजार से फाइट करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए ट्रिपटाइड MOU भी साइन किया है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। Presently, all program activities are being implemented through the National Vector-Borne Disease Control Program, which is an umbrella program and is subsumed under National Health Mission Program. करंट में जो भी क्रोनिक डिसीज या फिर कालाजार जैसी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी इलनेस को इम्प्रूव करने के लिए इन सभी प्रोग्राम एक्टिविटीज को करंट में नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर रखा जाता है, जिसको नेशनल हेल्थ मिशन के साथ सब्ज्यूम किया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव WHO न्यू रोड मैप फॉर 2021-30 इट फोकस टू प्रिवेंट, कंट्रोल, एलिमिनेट एंड eradicate a set of 20 diseases including कालाजार by 2030। WHO ने 2021 से 30 तक के लिए एक न्यू रोड मैप बनाया है और इसके अंदर अबाउट 20 डिसीज जिसमें कालाजार भी इंक्लूड है
इन 20 डिसीज के प्रिवेंट के लिए, कंट्रोल के लिए, एलिमिनेशन के लिए, इरेडिकेट करने के लिए फोकस किया गया है। द टारगेट सेट बाय इन 2000 टू एलिमिनेट दीज डिसीज ग्लोबली बाय 2020 वाज नॉट अचीव्ड। इन डिसीज को 2000 इन डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए 2000 में जो टारगेट सेट किए गए थे, और 2000 में टारगेट सेट किए गए थे वो 2020 तक के लिए सेट किए गए थे, बट उन टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका, और अब इस टारगेट को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डिस्पाइट सेटबैक ड्यू टू कोविड-19, डब्ल्यूएचओ विल एक्सेलरेट वर्क टू अचीव दिस टारगेट बाय 2030। बिकॉज यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक भी देखा गया है, तो इन टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने इन टारगेट्स को 2020-30 तक के लिए स्पेंड कर दिया है। व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? व्हाई फॉरेस्ट कैचेज फायर? उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर अ वेकअप कॉल। Let's discuss the issue in detail. A major new study reveals that CO2 emissions from forest fire have surged by 60% globally since 2001 and almost tripled in some of the most climate sensitive northern boreal forest. एक मेजर न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग CO2 एमिशंस 60% तक बढ़ चुका है। स्पेशली फॉरेस्ट फायर की वजह से जो CO2 एमिशंस होता है वो 2021 के कंपेयर में करंट में 60% तक इसका एमिशन बढ़ चुका है। What is forest fire? A forest fire is an uncontrolled fire that destroy a large part of the forest. फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर है जो कि फॉरेस्ट के लार्ज पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। नवंबर टू जून इज कंसिडर्ड टू बी फॉरेस्ट फायर सीजन इन इंडिया। पीक फायर सीजन टिपिकली बिगिंस इन लेट फरवरी एंड स्पेन अबाउट 12 वीक। फॉरेस्ट फायर सीजन के तौर पर जो इम्पोर्टेंट मंथ्स माने जाते हैं, नवंबर टू जून मंथ ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर इन मंथ के अंदर होता है। पीक फायर सीजन की अगर बात की जाए तो लेट फरवरी का जो टाइम होता है वो इसका पीक सीजन होता है। व्हाट इज स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, 21.67% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट। 2019 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया का 21.67% एरिया पर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इन आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमली फायर प्रोन। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये वो स्टेट हैं जिन्हें एक्सट्रीमली फायर प्रोन स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। ड्राई डेसिड फॉरेस्ट आर हाईली ससेप्टेबल टू सीवर फायर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के जो चांस होते हैं वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। ओडिशा हैज रिकॉर्डेड 871 लार्ज फॉरेस्ट फायर सिंस नवंबर 2022। नवंबर 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो ओडिशा में अभी तक 871 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट नोटिफाइड किए गए हैं, जो कि इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा है। दिस इज ऑल्सो नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सीजन। इट वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर 754 केसेस आइडेंटिफाई किए गए। कर्नाटक के अंदर 642 केसेस आइडेंटिफाई किए गए। तेलंगाना के अंदर 444 एंड एमपी के अंदर 316 केसेस आइडेंटिफाई किए गए। In 2021, 51,968 forest fire incident occurred in the state. इंडिया के अंदर टोटल अगर फॉरेस्ट फायर की बात की जाए तो 2021 में 51,961 केसेस आइडेंटिफाई किए गए थे। व्हाट आर द रीजन्स फॉर फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया के अंदर फॉरेस्ट फायर के क्या क्या रीजन्स हैं? देयर आर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट जितने भी होते हैं कुछ नेचुरल कॉज की वजह से होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से होते हैं। व्हाट आर नेचुरल कॉजेज? नेचुरल कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं? लाइटनिंग हो सकता है, वॉल्केनिक इरूप्शन हो सकता है, हीट पैटर्न हो सकते हैं, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ट्रिगरिंग फॉरेस्ट फायर। सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में स्मोकिंग हो सकता है, कैंप फायर हो सकता है, बर्निंग डेब्रिस हो सकता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हो सकता है। Number of lightning. A lightning strike power cables, trees or rocks which can produce a spark triggering forest fire. लाइटनिंग की वजह से ये पावर केबल्स, ट्रीज, रॉक को स्ट्राइक कर सकता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर स्ट्राइक हो सकता है। नंबर 2, वॉल्केनिक इरूप्शन. ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरूप्शन, hot magma in the eastern earth crust is usually expelled out as lava.
The hot lava then flow into nearby field or land to start wildfires. वॉल्केनिक इरुप्शन जिस टाइम पर होता है उस टाइम पर हॉट लावा अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है लावा की फॉर्म में। ये लावा एक्सपेल होता है और जैसे ही ये फील्ड तक पहुंचता है जहां पर फॉरेस्ट होते हैं वहां उसकी वजह से विल्ड फायर स्टार्ट हो जाता है। हीट पैटर्न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज टेम्परेचर मेक द फॉरेस्ट मोर वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर। राइजिंग टेम्परेचर एंड ड्रेनेज मेक फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस फॉर द फायर टू स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग करंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फॉरेस्ट के अंदर फायर होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज होने की वजह से और ड्राइनेज की वजह से भी फॉरेस्ट फायर सर्कमस्टेंसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 4 लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्राइनेज इन द सॉइल ट्रिगर्स फायर इन फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल रिसेंट उत्तराखंड वाइल्ड फायर्स हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू दिस रीजन। सॉइल के अंदर ड्राइनेज भी फॉरेस्ट फायर को लीड करता है। रिसेंटली अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड वाइल्ड फायर जो इंसिडेंट हुआ था ये सॉइल ड्राइनेज की वजह से हुआ था। नंबर 1 नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ट्रिगरिंग फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड लीव्स ड्राई ग्रास ड्राई वुड लॉग्स स्टम्प्स एंड वीड्स इन फॉरेस्ट लैंड आर ऑल्सो रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर। इंडिया के अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड लीव्स ड्राई ग्रास ड्राई वुड लॉग्स स्टम्प वीड्स ये सब मिलता है और इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी ट्रिगर होता है। सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की अगर बात की जाए इसमें नंबर 1 पर स्मोकिंग आता है। स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज फॉर फॉरेस्ट फायर ग्लोबली। ग्लोबली फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से होता है। थ्रोइंग अवे द सिगरेट विदाउट कंप्लीटली एक्सटिंग्विशिंग देम कैन लीड टू विल्ड फायर। अगर सिगरेट को यूज करने के बाद उसको विदाउट एक्सटिंग्विशिंग हम फेंक देते हैं तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकता है। नंबर 2 कैंप फायर ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज और कंपेनिंग पीपल नॉर्मली लीव lit फायर फॉर कंबसिंग मटेरियल unattended दिस इग्नाइट वाइल्ड फायर्स। आउटडोर एक्टिविटीज या कैंपेनिंग के टाइम पर पीपल नॉर्मली लिट फायर को लीव कर देते हैं जिसकी वजह से विल्ड फायर इग्नाइट हो सकता है। नंबर 3 बर्निंग डेब्रिस वेस्ट एंड ट्रेश ऑन समटाइम्स आर बर्न टू एसेस एज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ रबिश। कभी कभी वेस्ट एंड ट्रेस का जो ढेर होता है उसको बर्न कर दिया जाता है और उसको लेफ्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस ऑल्सो लेड टू फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर। रिसेंटली सिमलीपाल के अंदर जो फॉरेस्ट फायर हुआ था वो इसी वजह से हुआ था बिकॉज वहाँ पर वेस्ट को बर्न किया जा रहा था। स्प्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फायर इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो फॉरेस्ट फायर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या क्या इसके इम्पैक्ट शो हो रहे हैं। नंबर 1 लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2 लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नंबर 3 इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। नंबर 4 एयर पॉल्यूशन। नंबर 5 सॉइल डिग्रेडेशन। नंबर 6 destruction of watershed, loss of ecosystem and biodiversity. These forest fires destroy the habitats and the intricate relationship of diverse flora and fauna, leading to loss of ecosystem and biodiversity. For example, extinction of wildlife in India. फायर फॉरेस्ट की वजह से डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना जो कि फॉरेस्ट के अंदर होती है इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है और इनका जो रिलेशनशिप है फ्लोरा एंड फोना का वो भी कभी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का लॉस होता है। नंबर 2 लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट फायर विच रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट फीचर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट फायर की वजह से सर्टेन फॉरेस्ट फीचर की जो क्वालिटी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है बिकॉज वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है इकोसिस्टम लॉस होता है। इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 1.70 लाख विलेजेस इन इंडिया हैव proximity to forest. The livelihood of several crores of people is dependent on fodder, fuel wood, bamboo and small timber. Forest fire directly impact their livelihood. 2011 की एक सेंसस के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के प्रॉक्सिमिटी यानी फॉरेस्ट के नियर अबाउट
1,70,000 विलेजेस लाई करते हैं। और ये जो विलेज के पीपल हैं, ये अपने फॉडर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, बैम्बू के लिए, स्मॉल टिम्बर के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। और अगर फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट होते हैं तो इन पीपल का जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है। नंबर 4, एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर इंस्टिगेट ह्यूज क्लाउड्स ऑफ स्मोक लीडिंग टू मैसिव एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर की वजह से स्मोक का क्लाउड्स बन जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन लीडिंग होता है। नंबर 5, सॉइल डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट फायर के लिए बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द सॉइल एंड प्रोमोटिंग सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज। फर्दर द वाइल्ड फायर्स विल मेक सॉइल वल्नरेबल टू द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकता है, बिकॉज फॉरेस्ट फायर की वजह से सॉइल के अंदर जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बैक्टीरिया फायर की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। destruction of watershed. Forest fire lead to the destruction of watershed of forest which are protected by the forest. फॉरेस्ट के द्वारा कुछ वाटरशेड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फॉरेस्टेड एरिया में। अगर उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वाटरशेड भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? नंबर 1, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेवलप अ फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया। दिस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर वाइल्ड फायर इन द रियल टाइम। वाइल्ड फायर को मॉनिटर करने के लिए, स्पेशली रियल टाइम में इसको मॉनिटर करने के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। MODI's Moderate Resolution Imaging Spectro-Radiometer. This sensor provides the real-time information on the forest and sent to the Forest Survey of India. मोदीज के अंदर वेरियस सेंसर्स होते हैं जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इन्हें सेंड किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरवर्ड द डाटा बाय ईमेल टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल डिवीजन, रेंज एंड बीट लेवल। पीपल इन द लोकेलिटी रिसीव SMS अलर्ट। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड मोदी से रिलेटेड कुछ सेंसर्स यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सेंड किए जाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ईमेल के थ्रू रिलेटेड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल डिवीजन एंड रेंज को फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो पीपल हैं उनको SMS के थ्रू अलर्ट किया जाता है। National Master Plan for Forest Fire Control. Under this, the government aims to introduce a coordinated and integrated fire managing program. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मास्टर प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फायर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करता है एंड इंटीग्रेट करता है।